Let us take it as 10 plus 1, 10 plus 2. मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है. Do you see here 10 and 10 are matching? Join them together like me. आपके पर्सनल नोट्स हैं, अपनी तरह उसको लिखो, अपनी वे में उसको एक्सप्रेस करो ताकि आप बाद में रिवाइज कर पाओ, राइट? So instead of x we are taking 10, instead of a we are taking 1, instead of b we are taking 2, instead of x we are taking 10 again plus a into b. पूरी की पूरी आपकी जो आइडेंटिटी थी वो नंबर में कन्वर्ट हो गई है. कैन यू सी इट? And question comes that evaluate or find the value of this. तो आप इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, जस्ट ब्रैकेट खोलो, पावर खोलो, इनको सॉल्व करो. 30 plus 2 and so on, whatever comes, that will be your answer. So we will be using such kind of identities in your question. Keep this list in front of you. Okay, and solve the questions which are given in module. You can see these identities. You can refer them for your 5 questions, 6 questions, 10 questions. जब तक आप expert नहीं होते, when you see कि अरे मेरे को तो बिना देखे आ गया ये question, so then you feel like yes, I need not see the list now. Okay, keep this list in front of you. We are going to start the module. You can see there also. Let us do for subjective questions. Okay, please note it down. I am going to clear it. Don't forget to speak by mouth. Don't forget to do lip sync because the mistake. Yes. Anybody? P section 6? Fine. Okay. We are going to start with the first question. Copy down. These are subjective questions. Please write down in your notebooks. First few questions of subjective question है, they are of 2 marks. Okay, 2 marks के लिए you are writing at least 3 to 4 steps. 4 step में आपका आंसर आ जाता है, 3 step में आपका सॉल्व हो जाता है. कई बच्चे इसको 2 steps में भी कर लेते हैं, so doesn't matter if you are confident. Right? Let us do first one. Expand the following using suitable identity. उन्होंने बोला है कि using suitable identity. You have to use it. First is x square y minus xy square whole square. Please see, but the board is clear to you? Are you able to see? Ma'am, no. Ma'am, no. Yeah, I could see some problem is. Let me correct it. ठीक है, आप कोशिश शुरू करो. Let me tell you, तब तक मैं किसको सेट करती हूँ. Take a is equal to x square y, b is equal to xy square. Apply the identity. Start it, please. तब तक मैं इसकी सेटिंग करती हूँ. Very good. Go slowly. No need to hurry. Okay, beta. So, we are using which identity, first or second?
Who say second? Raise your hand. जिनको पता चल गया है कि second identity we are applying. Yes, please. A minus B whole square. A is this, B is this. This is very important to write down. I'm putting star over here. अगर आप ये चीज नहीं लिखोगे आपकी बहुत बड़ी गलती होने वाली है. Take care. A square. A square means x square y whole square plus B square. धीरे धीरे लिखो. होल स्क्वायर. मुंह से जब बोलोगे होल स्क्वायर तो आपको बताएगा वो कि ब्रैकेट लगानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ओके. प्लस 2 into A into B. डोंट डू इट इन हरी. कहीं ना कहीं पावर मिस कर लोगे, कहीं ना कहीं साइन गलत हो जाएगा. टेक केयर. ओके. हाउ विल यू ओपन द फर्स्ट ब्रैकेट? व्हाट विल कम इन x square y whole square? A section. दिव्यांश. दिव्यांश मेरे को फर्स्ट का बताओ मैम क्या. माइनस +2 की जगह -2 आएगा। अच्छा, this is -1. Yes. Yes, this is minus formula. Second formula we are applying. Yes, Divyansh, are you telling me, beta, how to open first bracket? What will come? Only first bracket. Two x y. 2xy. Why 2? We are putting the square. There is a square over here. Square क्यों बता रहे हैं? Square का मतलब है कि x square का square and y square. ये मतलब है इसका. Okay, now tell me what will come. जो बाहर स्क्वायर होता है ना बेटा, जो बाहर पावर है वो दोनों के ऊपर पावर बन जाती है. ठीक है. नाउ टेल मी व्हाट विल कम हियर. यहाँ पे क्या आना चाहिए? मजीद, दिव्यांश. X raised to power 4. x raised to power 4. आगे Y raised to power square. y के ऊपर तो 2 है बेटा, तो y स्क्वायर आएगा. ओके, sit down. Sit down. I will call you once more and understand it nicely. बेटे, I want to expand it in this way क्योंकि ये पावर का कंफ्यूजन हो रहा है आपको. Please write out in this way. X raised to power 2 to the 4 y square plus x raised to power 2 y raised to power 2 to the 4. जो बाहर पावर है वो अंदर वालों से मल्टीप्लाई हो रही है. x के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो रही है, y के साथ अलग से हो रही है. प्लीज टेक केयर. -2 into x square into x is x raised to power 3 because इसका मतलब क्या है? ऊपर पावर 1 है. x और y के ऊपर अगर पावर नहीं है तो इसका मतलब वहां पे 1 है. So you are doing it 2 plus 1 3 and here also 1 plus 2 is 3. Right? Any doubt? ये 2 marks का आपका क्वेश्चन है. ओके, एंड द मोमेंट यू सी सारी अनलाइक टर्म्स है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, दिस इज योर आंसर. यू हैव टू स्टॉप इट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू कि ब्रैकेट को कैसे खोलना है हमने. जब आप आंसर फाइनल आंसर लिखोगे ना, यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट. ओके, open the bracket means whatever is outside you have to take it inside by multiplying. Okay, we will do more questions and you will come to know better. Let us do second question. Second question is 4 by 5 p plus 5 by 3 q whole square. We have taken peculiar questions because easy wale questions aap kar chuke already class mein. Okay, now you are doing practice. Now you can see very well this is plus sign over here. We will use first identity. जिन स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है, start doing.
Who want to understand? Look at the board and listen to me. Here A is equal to 4 by 5P, B is equal to 5 by 3Q. जब बोलोगे तो आपका हैंड ऑटोमेटिकली फास्ट चलेगा. ओके, कीप इन माइंड A plus B whole square, A square आइडेंटिटी आपके सामने है, प्लस B square plus 2 into A into B. You know, we are not using any multiplication sign. We are just putting bracket so that हमें multiplication का sign जो है वो confuse ना करें x के साथ. This is the way we are doing. You have to open the bracket carefully. Do it carefully. I told you जो square है वो दोनों के ऊपर जाएगा. 4 by 5 के ऊपर भी जाएगा, p के ऊपर भी जाएगा. Okay? D section. Varun. Can you tell me what will come here? First bracket beta. फिर फर्स्ट वाला बताओ क्या आएगा? Sixty square 25 P square. 3 by 25 p square. चलो आगे भी बता दो. वेरी गुड. जस्ट स्क्वायर करना है ना, 5 by 3 को स्क्वायर करना है. ओके, 5 का स्क्वायर करो, नीचे 3 का स्क्वायर करो. 25 by 9. 25 by 9 और Q square. q square. वेरी गुड, वेरी गुड. प्लस आगे we can cancel this 5 and 5. ये सारा कुछ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है. 5 and 5 कैंसिल कर दिया. What do you see? न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? किस टाइप 4 में? by 3. 4 by 3. But there is 2 also here. You can write like this 4 by 3 PQ. ऐसे लिख सकते हो इसको. Yes. और खोलो ब्रैकेट को. One more step. What will come? फाइनल आंसर बताओ बेटे जल्दी से. What should come here? Here, last step. ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 into 4. ओके, 2 का मतलब क्या है? 2 by 1. तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4 to the 8, 8 by 3 PQ. 8 by 3 PQ. Put better place it down. Down. Who are getting this answer? Like me and who have done themselves. Please raise your hand. जिन्होंने खुद किया और मेरे से आंसर मैच कर रहा है उनका. गुड, वेरी गुड बेटा. कीप प्रैक्टिसिंग. ठीक है. एंड जिसको डाउट है प्लीज स्टैंड एंड आस्क. बेटा दिस अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू. ओके, डोंट हेजिटेट. प्लीज आस्क मी. किसी को कोई स्टेप आपको नहीं समझ आया, शुरू के क्वेश्चन में थोड़ा स्लोली चलो. आइडेंटिटी लगाओ, स्क्वायर लगाओ, जो अंदर 2 टर्म्स है और दोनों का स्क्वायर लगाओ, फिर ब्रैकेट खोलो. जैसे ही आपको लगता है कि ये 3 अनलाइक टर्म्स आपके पास आ गई हैं, यू हैव टू स्टॉप हियर. वो आपका आंसर होगा. थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 3. x minus 1, x plus 1, x square plus 1. यू नो, लिपसिंग करने का फायदा क्या है? जब आप मुंह से बोल रहे हो तो उसका बेनिफिट क्या हो रहा है आपको? आपको ये बेनिफिट हो रहा है कि जब आपने आइडेंटिटी लिखी थी तब भी आपने लिखा था कि x minus 1 a plus b a minus b. वो आइडेंटिटी थी थर्ड वाली. यहाँ पे भी आपको दिख रहा है x minus 1 x plus 1.
इमीडिएट, अगर आप मुंह से सीरियसली लिफ्टिंग कर रहे हो ना, इमीडिएट आपके माइंड में आ जाएगा कि यहाँ पे तो आइडेंटिटी लगने वाली है। किस किस को दिख रहा है कि हाँ ये आइडेंटिटी उससे मैच कर रहा है, थर्ड आइडेंटिटी? हाथ खड़े करो जरा। किस किस को लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी से मैच कर रहा है? गुड। बाकी बच्चे आइडेंटिटी को देखो और उसको दोबारा रिलेट करो दोनों। ए की जगह यहाँ पे एक्स है और बी की जगह यहाँ पे 1। ओके। एंड बी सेक्शन, द सेकंड बेंच गर्ल, बेटे आके मेरे को बताओ। यस आंसर बेटा। टेल मी व्हाट शुड आई राइट हियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना चाहिए? अगर ये आइडेंटिटी दिख रही है तो हम क्या लिखेंगे? A square minus B square. या व्हाट इज दैट देन? क्या यहाँ पे ए की जगह क्या लिखे और बी की जगह क्या है? A equals to X and B is 1. वेरी गुड। देन X square minus 1 square. x square minus 1 square, it means x square minus 1. ओके। जो बच्चे यहाँ पे लिखना चाहते हैं ना कि a इक्वल टू x है, b इक्वल टू 1 है, लिखो यहाँ पे, कोई आपकी मिस्टेक नहीं करेगी। वेरी गुड बेटा। राइट डाउन, जो चीज आपको दिख रही है उसको लिख डालो वहां पे, क्योंकि आप वो अप्लाई करने जा रहे हैं। a की जगह x है, b की जगह 1 है। अप्लाई द प्रॉपर्टी a माइनस बी a प्लस बी। a की जगह आपने x लिखा, b की जगह आपने 1 लिखा। नाउ और क्या दिख रहा है? अब नेक्स्ट क्या करोगे? अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपके 2 मेथड्स हैं। जिन बच्चों को तो फिर से दोबारा से आइडेंटिटी दिख रही है, अगर आपको दोबारा से आइडेंटिटी दिख रही है, यू कैन से a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड b 1। ओके। बट अगर आपको आइडेंटिटी की कंफ्यूजन होती है कि पता नहीं है, आई मस्ट टेल यू बेटा, अब आपको जब आइडेंटिटी आ गई है ना, तो a और b की जगह कुछ भी आ सकता है। प्लीज माइंड, a की जगह x रेज़ टू 5 भी आ सकता है, a की जगह एक नंबर भी आ सकता है। बी रेडी फॉर दैट। आपको क्या पहचानना है कि ये दोनों आपस में मिलने चाहिए। जैसे ये दोनों आपस में मिलते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो आपका आइडेंटिटी इमीडिएट लगा। a की जगह x स्क्वायर है, b की जगह 1। तो आप क्या करने वाले हो? आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यू हैव पुट योर आइडेंटिटी। ओके। तो हमारे पास क्या आ गया? व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, दिस इज x4 माइनस 1। अदर मेथड इज, अगर आपको बाय चांस आइडेंटिटी नहीं दिख रही है, यहाँ पे आपको लगता है कि एक बार आइडेंटिटी लग चुकी है तो दोबारा कैसे लग सकती है, डाउट होता है ना कई बार माइंड में, तो आप सिंपली ओपन कर दो ब्रैकेट को। यू कैन डू लाइक दिस। कई बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 को हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सिंपली हमने उसको मल्टीप्लाई किया। ओके, यू कैन डू इट एनीवे। तो अभी यू कैन ओपन इट, x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, x4 माइनस 1। आंसर विल बी सेम। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे करो। करते करते कई बार डाउट आ जाता है माइंड में कि एक बार आइडेंटिटी लगा दी, अब क्या करें आगे? तो आइडेंटिटी तो आप जितनी बार मर्जी लगाओ, जैसे ही आपको दो चीजें सेम दिख रही है, अप्लाई। कोई आपको स्टॉप नहीं करेगा। ओके, लर्न इट। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इमीडिएट आइडेंटिटी आपको सामने ही दिख जाएगी। ओके, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। और ये छोटे छोटे जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई गलती होने का कोई चांस होना चाहिए। अगर आप बहुत ध्यान से कर रहे हो, फुल कॉन्सेंट्रेशन से कर रहे हो, बोल के कर रहे हो, इन क्वेश्चन में कोई गलती होने का चांस ही नहीं। ओके, only thing is you have to practice.
डेली के 5 क्वेश्चन कर दो, एवरी डे 5 क्वेश्चन करने ही करने हैं आप। 5 नहीं टाइम मिलता और भी सब्जेक्ट है, 3 करो। एवरी डे डू 3 क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर, जितने भी चैप्टर आप आंसर कर चुके हो 3 क्वेश्चन एवरी डे उठा लो कि आज ये 3 क्वेश्चन करके ही मैंने सोचा है आज की डेट में। कभी हॉलीडे है तो 5 कर लो, 2 हॉलीडेज है तो 5 कितने ज्यादा हो जाएगा। अब आप कितनी हॉलीडेज आ रही हैं, यू कैन डू 5, रोज आप 5 क्वेश्चन करोगे तो इमेजिन ये अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, लेट अस डू नेक्स्ट बेटा, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में से हिंट आपको दूंगी, आपको खुद करना है क्योंकि सेम है क्वेश्चन। दिस इज 2x plus 3y, 2x plus 3y and second bracket is 2x plus 5y। अब उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है कि यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी इसका मतलब आप सिंपली तो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते इसको ना। सिंपली अगर उसकी तरह सोचो कि हम ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें जिसकी प्रॉपर्टी लगा के तो वैसे भी हो जाएगा, बट आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। इमेजिन करो कि चारों में से कौन सी आइडेंटिटी रखने वाली है आपकी, मैच करो ना आइडेंटिटी से। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मैच करो कौन सी लगने वाली है आपकी। दोनों ब्रैकेट में जो चीजें मैच कर रही है उनको ज्वाइन करो, जैसे आपको फॉर्मूला बताया था कैसे ज्वाइन करके उनको मैच करो कि दोनों ब्रैकेट में क्या मैच कर रहा है आपस। कैन यू सी 2x is matching to 2x? मैंने आपको पहले ही बताया जब हमने आइडेंटिटीज लिख ली हैं हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी है, x plus a, x plus b, ये आइडेंटिटी है जो कि इससे मैच कर रही है। ओके, तो आपकी जो आइडेंटिटी है उसको अप्लाई कर दो, इट वाज x स्क्वायर a plus b x plus a b, आइडेंटिटी है। आपको ये नहीं देखना कि वहां x था और यहाँ पे 2x है, ये नहीं आपको देखना। आपका क्वेश्चन है, आई टोल्ड यू, वो किसी भी फॉर्म में आपको आ सकता है। 2x आए, 2x स्क्वायर आए, 2x स्क्वायर एक्स तो 5 आए, a आए, a स्क्वायर आए, a क्यूब आए, वट एवर यू नो दे आर मैचिंग टू ईच अदर, तो हमारी ये आइडेंटिटी लगने वाली है, उससे मैच कर रही है। x की जगह हमारे पास 2x है, a की जगह हमारे पास 3y है और b की जगह हमारे पास 5y। जल्दी से पहले लिस्ट बना लो कि हम किसके बदले में क्या लिखेंगे। I'm telling you again and again, this step is most important to write, which will make you confident कि हम उसकी वैल्यू ठीक पुट कर रहे हैं। Good, जिनको आता है प्लीज स्टार्ट डूइंग। Attention, yes बेटा, you want to ask anything? Your mic is on. की जगह 3y, b की जगह 5y, आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। x स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस a प्लस b, x की जगह फिर से 2x आ जाएगा। प्लीज टेक केयर, इंस्टेड ऑफ x यू आर यूजिंग 2x, हमारे क्वेश्चन में वो 2x है, प्लस a b, a आपके पास है 3y, b आपके पास है 5y। वे ऑफ राइटिंग अगर आपका ठीक है तो गलती तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसे कि अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया, अगर गलत हो गया तो आपने कहीं ना कहीं उसको गलत देखा, गलत आइडेंटिटी लगाई, राइट। इफ यू आर डूइंग बाय फुल कंसंट्रेशन ये छोटी छोटी गलतियां आप अवॉइड कर सकते हैं। थिंग इज डन, आपने बहुत नाइसली सब कुछ प्लेस कर दिया। प्लीज ओपन द ब्रैकेट नाउ, आपका जो आंसर आना चाहिए
आपके पास अनलाइक टर्म्स में एक एक्सप्रेशन आनी चाहिए। ओपन द ब्रैकेट, वन बाय वन, वेरी गुड। I will ask you, do it yourself, everybody. D section, continue. Very good. Be attentive. Bracket. D section. D section. Sarabpreet Singh. Sarabpreet bete. Yes, Sajo beta. Please tell me what will come in the first place. यहाँ पे क्या आएगा? Don't listen to others, ठीक है? अगर नहीं आता, you tell me. I don't know. I will. नहीं आ रहा है। जल्दी बताओ। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? 2x का होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर, वेरी गुड। किसी ने बताया है या आप खुद बता रहे बेटे? मैं खुद तो बता रही हूँ। वेरी गुड, आगे चलो। ओपन द ब्रैकेट, जल्दी से बताओ आगे क्या आएगा। बाहर वाला 2x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, बिलो इट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड, बताओ क्या क्या आएगा। 2x into 3y, what will come? 6xy। 6y, वेरी गुड, आगे बोलते जाओ, कंटिन्यू। 10xy। 10xy, अगर कई बच्चे yx लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, x भी लिख सकते हो, xy भी लिख सकते हो। आगे बेटे। 15y स्क्वायर। 55 square, very good beta, please sit down, sit down. Now see it very carefully. Are they unlike terms? Are they unlike? कोई चीज अगर मैच कर रही है तो उसको कंबाइन करो। आपको दिख रहा है यहाँ पे xy and xy are matching to each other, they are like terms। कई बच्चों ने yx लिखा होगा या xy लिखा होगा, एक ही बात है। ओके, मल्टीप्लिकेशन में 2 into 5 हो या 5 into 2 हो, तो एक ही का बात होती है वो। So that's why we can write it like this, make it like this. We can combine it, 4x square plus 16xy plus 15y square. Now they are alike, you can see very well. So that's why this is the answer. Okay, have you come to know how we are using the identities? Any doubt till here, beta? काफी मेजर क्वेश्चन किए हैं अपने आज, और ये सारे आपकी अलग अलग आइडेंटिटीज यूज हो रही है, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आइडेंटिटी। कैसे किसी को डाउट है, यू कैन स्टैंड, कम फॉरवर्ड टू आस्क मी। क्वेश्चन नंबर 5, 0.9p minus 0.5q, and again it is 0.9p minus 0.5q. इनको लगता है कि फर्स्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है, हाथ खड़े करो। इनको लगता है सेकंड आइडेंटिटी यूज हो रही है, raise your hand. Can you see both have negative sign, दोनों के पास माइनस साइन है। a minus b, a minus b, we can write it as 0.9p minus 0.5p. You can write like this, सेकंड आइडेंटिटी से मैच करो, a minus b, a minus b, दोनों ब्रैकेट में हमारे पास a minus b।
ओके, तो आपके पास आ गया a माइनस बी स्क्वायर. स्टार्ट स्टार्ट पुटिंग इट. ये थोड़ा पॉइंट वाला है, डेसिमल वाला नंबर है, बट डोंट वरी, इसको नंबर की तरह ट्रीट करो. नॉर्मली जैसे नंबर करते हो, सेकंड वाली आइडेंटिटी लगाओ. All hardworking children, they have started doing. I know they are writing it. I can see you writing. Children who are doing themselves. Make your own effort, okay? Very good. E की जगह 0.9 P and B की जगह आपके पास आ जाएगा 0.5 Q. तो ये बच्चे यहाँ पे B की जगह माइनस 0.5 लिख देते हैं. Don't do that. Okay? माइनस की जो आइडेंटिटी है ना बेटा, उसमें ऑलरेडी हम माइनस की आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, तो आपको बी को एज इट इज नंबर ही कंसीडर करना है. जो नंबर है पॉजिटिव नंबर, आपको माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी ए माइनस बी की यूज है. ओके बेटा, तो लेट अस वेरी गुड बेटी, ब्रेव चिल्ड्रन, यू आर ऑल ब्रेव. ए की जगह 0.9 पी, बी की जगह 0.5 क्यू. ए स्क्वायर इज 0.9 पी स्क्वायर plus b square, that is 0.5 q whole square minus 2 into k into b. Right, neatly. Okay. आपकी कहीं गलती ना हो जाए, दो लिखो. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे डेसिमल भी यूज हो रहा है और प्लस माइनस भी यूज हो रहा है. नीचे लिखो, ब्रैकेट में लिखो सब कुछ, सो दैट आपकी मिस्टेक. डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन यू नो हाउ टू डू, है ना? Doing very good. 0.9 into 0.9. What will come? What is 0.9 into 0.9? follow me. इसको करना है, कर सकते हो. वैसे तो ये मॉडल क्वेश्चन है, आप 8th क्लास में हो. What is 0.9 into 0.9? C section. Mishika. Some time is over. Yeah, I know. But it 0.81 p square. 0.81 p square. Very good. Okay, first is done for you. Please complete it. Your time is up now. Please complete at home. Okay. Okay, बच्चे, please enjoy your holidays as well as practice 5 questions. जब holiday है तो 5 questions, जब school है तो 3. Okay. Definitely you will do well. Okay.